السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سنی مسلمان وفادار رسول میرے سر کے تاج ہیں، تمام دیوبندی وہابی غدار رسول دشمن رسول جوتے کی نوک پر۔ جناب حضرات، اس چینل کو آپ حضرات ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ وہابیوں دیوبندیوں کا اوریجنل مجروح چہرہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ آج کل وہابی دیوبندی کچھ زیادہ ہی ذلیل ہو رہے ہیں اور کچھ زیادہ ہی مجھے دھمکیاں بھی دے رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں تیرے خلاف FIR درج کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں تیرا چینل بند کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں کہ تو سوچ لینا کہ تیرا کیا ہوگا۔ بہرحال طرح طرح کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ بہرحال مجھے دھمکیوں سے ڈر نہیں ہے، میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں۔ آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور فیصلہ کریں۔ ہیلو ہیلو، ہاں جی، ہیلو جی نور بھائی۔ ہاں، آپ کون؟ جی میں آہل خان بول رہا ہوں۔ آہل؟ جی آہل خان۔ اچھا، کہاں سے؟ جی میں گیا سے بول رہا ہوں، بہار سے۔ اچھا، گیا بہار۔ جی آپ سے بات کرنے کا کافی دن سے میں سوچ رہا تھا، لیکن آج تھوڑا موقع ملا۔ اچھا، کس مسلک سے ہیں؟ جی نور بھائی، مطلب مسلک میں کچھ مختصر بتانا چاہتا ہوں آپ کو، اور آپ سے کچھ تھوڑا سا مطلب ایک ڈسکشن کرنا چاہتا ہوں تھوڑا سا۔ آپ کی میں نے کافی ویڈیو سن رکھی ہے، کافی ویڈیو۔ اچھا جی آپ کی جمشید علی قادری بھائی کی، علی خان کی بھی سنتا تھا، سب جو جتنے ہیں۔ تو اصل میں کیا ہے کہ ہمارے ادھر ہیں تو سب مطلب سنی ہم کی بریلوی ہی، ٹھیک ہے، اور میرے بھی خاندان میں سب وہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور تھوڑا سا میں مطلب ریسرچ پہ لگ گیا تھا کہ مطلب آخر اتنے مسلک کا جھگڑا ہے کیا۔ تھوڑا سا میں ریسرچ کر رہا تھا، اسی دوران آپ لوگوں کی ویڈیو ملی اور سب کچھ ملی، اور تو میں نے سنا جہاں تک، تو اسی سلسلے میں تھوڑا سا آپ سے، ایسے تو میں جانتا ہوں کہ آپ سلام کا جواب نہیں دیتے بنا مسلک جانے، کافی آپ کا سنا ہے میں نے۔ جی کہاں تک ریسرچ پر پہنچے آپ؟ جی حضرت، تو ریسرچ پہ یہی پہنچا میں۔ دیکھیے ایسے تو میرا جھکاؤ بریلوی کی طرف ہی رہتا ہے، میں اسے تھوڑا سپورٹ بھی کرتا ہوں۔ دیکھیے اصل میں مطلب ویسے تو میں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جتنی باتیں ہوتی ہیں علم غیب سے، اور یہ بھی تو اس پہ تو میں مطمئن ہوں کہ ہاں جو مطلب سب کچھ ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تھوڑا حضرت مجھے مطلب شرک کے ٹاپک پہ تھوڑا سا کچھ کنفیوژن ہے۔ اچھا جی آج آپ سے بات کر کے کافی خوشی ہو رہی ہے۔ اچھا، کیا کنفیوژن ہے وہ ذرا بتائیں مجھے آپ۔ جی دیکھیے آج پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو وہابی دیوبندیوں کے ساتھ جو اکثر لوگ چلے جاتے ہیں، ہو جاتے ہیں، جی تو یہ بھی دھوکے میں چلے جاتے ہیں، یہ دھوکے میں ہوتے ہیں ادھر۔ جی ٹھیک ہے، اور باقی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، اور وہابی دیوبندی کے جو کفری عقیدے ہیں ان کو آپ تسلیم نہیں کرتے، فالو نہیں کرتے۔ مجھے کہہ رہے ہیں آپ؟ جی اصل میں دیکھیے دیوبندی کو تم دیوبندی جو جن کے کافروں پہ کفر کا فتویٰ لگا ہے، اور جو ان کو مسلمان مانتے ہیں ان کو تو میں کافر مانتا ہوں۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ جی بالکل، کیونکہ تحقیق ہے وہ سامنے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، ان کے علم کو جانور اور پاگلوں سے تشبیہ دی ہے۔ جی تو ظاہر سی بات ہے حضرت، مجھے ایک چیز میں بڑا غصہ آتا ہے حضرت۔ جی آپ کتنے طریقے سے بات کرتے ہیں، میں نے آپ کی ایک نہیں کم سے کم 400-500 ویڈیو سنی ہوگی، بس 400-500 400-500 میں نے کہا جی نہیں میں اصل میں سعودی میں رہتا تھا۔ اچھا وہاں بھی آپ کی ویڈیو سنتا تھا، اور کام کرنے کے دوران آپ کی ویڈیو چلتی رہتی تھی، اور میں خاص کر کے آپ کی طاہر رضا قادری صاحب کی اور علی خان کی بھی سنتا تھا۔ پھر علی خان سے کوئی اختلاف وغیرہ ہو گیا، سب کچھ میں نے سنا، سب کچھ میں جانتا ہوں۔ وہ بھی علماء اہل سنت کے لیے غلط الفاظ استعمال کرنے لگا۔ جی حضرت ہم نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی، جی پر وہ مانا نہیں، اپنی اڑی پہ اڑ گیا۔ جی اس لیے ہم نے اس سے جو ہے قطع تعلق کیا۔ جی ہم اس کا کال بھی نہیں اٹھاتے ہیں۔ جی جلال الدین صاحب سے ان کا کچھ وغیرہ ہو گیا تھا۔ جلال الدین صاحب سے نہیں ہوا تھا جی، بلکہ علی خان کا ہی کوئی ایک رشتہ دار ہے۔ جی تو مولانا عبد المصطفیٰ رودولوی صاحب کو اس نے گمراہ بتایا تھا، واجب القتل بتایا تھا۔ جی ہم نے ان سے یہ کہہ دیا کہ بھائی آپ جو ان کو ایسا بول رہے ہیں، آپ کے پاس کیا دلیل ہے، کیا ثبوت ہے؟
जी 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 उन्होंने ना कोई सबूत दिया, ना कोई दलील दी, कुछ नहीं। जी जी। बस बोले मैंने कहा, मैंने खुद कहा, मैंने कोई फतवा थोड़ी लगाया, मैंने यूं कहा जी, वो जी। कहा, मतलब खामा खाई की फिर लंतरानियां जी जी। उन्होंने चालू कर दी। आपने जो बात की थी उनसे, जो जी। पहली बार ऐसा मसला आया तो आपने बात की थी, वो ऑडियो मैंने सुनी है। आपने उनसे उसमें भी देखो जी। मैंने समझाने की कोशिश की है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने तरीके से पूछा कि अली भाई मैं मतलब सोच नहीं सकता को वैसा बोल सकते हो, फिर वो बदतमीजी करने लगा। मैं आप हजरत एक बार बताऊं नूर भाई, आपकी जो बात करने का तरीका है वो सबसे ज्यादा अच्छा लगता है मुझे, सबसे ज्यादा अच्छा। लोग आपको भले ये आके गाली गलौज कर देते हैं तब आप कुछ बोलते हैं, ये मेरे को 100%, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियो सुनी है, आपका बात करने का अंदाज बहुत मुझे पसंद है। मैं सामने वाले के तरह बात करता हूँ, जैसा सामने वाला होगा वैसे ही मैं बात करूंगा। सामने वाला अगर देवबंदी वहाबी ही कैसा ही हो, कुछ भी हो, अगर वो मुझसे सही से बात कर रहा है, प्यार से बात कर रहा है, तो मैं भी उससे प्यार से ही बात करता हूँ। और अगर बदतमीजी करता है तो पहले समझाता हूँ, नहीं समझता है तो फिर बिल्कुल उसे भी खुराक देनी पड़ती है। मुझे हजरत हंसी आती है जब कोई आपको सलाम करता है, आप मसलक पूछते हैं, उसको मालूम है कि बिना मसलक पूछे सलाम का जवाब नहीं देते, लेकिन फिर भी सलाम करते, सलाम का जवाब क्यों नहीं देते, सलाम का जवाब क्यों नहीं देते। तो मैं इसलिए पूछ रहा था आपसे अभी जी हजरत जी कि वहाबी देवबंदियों के जो 4 अकाबिर हैं देवबंदरों के, और जो गुस्ताखे रसूल हैं जो भी हों, आप उनसे कतई ताल्लुक रखते हैं। बिल्कुल, बेशक बेशक। आप आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह को फॉलो करते हैं जी, बस इल्म की थोड़ी सी कमी की वजह से या फिर किसी और वजह से जी 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 हजरत थोड़े से मतलब लूज पॉइंट में है ना। बाकी आपका अकीदा वही है जो हुजूर आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह का है, जो तमाम बुजुर्गान दीन का है। बेशक रसूलुल्लाह के तमाम कमालात को आप तस्लीम करते हैं। बेशक बेशक। हजरत मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपके थ्रू, जैसे इतने बड़े घामड़ है हजरत, मुझे गुस्सा इन पे, जो देवबंदी वहाबी जो भी बात करते हैं आपसे जी। अब बताइए एक चीज, मैं आपके थ्रू सबसे पूछना चाहता हूँ जी। माशाल्लाह नेट पे वीडियो जाती है कि वो कहते हैं, उनका एतराज रहता है कि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का जो हार गुम हो गया था तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता नहीं था। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। अब मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि अल्लाह के एक मामूली वली खिज़र अलैहिस्सलाम को जमीन का खजाना भी मालूम है कहाँ पे है, नबियों के नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम नहीं वो हार कहाँ है जी। कितने बड़े घामड़ है। असल में वहाँ हिकमत थी। जी जी जी। हिकमत ये थी कि अगर हुजूर बता देते जी जी कि फला जगह है तो उसी वक्त चल देते। बेशक बेशक बेशक। उसकी वजह से वहाँ रुकने का एक मौका मिला, चांस मिला। जी जी। वो हार गुमना तो एक रहमत था। जी 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 जी। वो हार गायब होना एक रहमत था, रहमत थी। जी जी। इसलिए कि अगर वहाँ हुजूर नहीं रुकते, वहाँ आराम नहीं फरमाते, नहीं ठहरते, तो फिर ये जो हमें एक कानून मिला, जी, जो हमें एक शरीयत का एक और जो है आसान वाला मसला मिला, फिर ये कैसे हमको मिलता है तयम्मुम वाला। आदमी कहीं ऐसी जगह पहुंच गया जहाँ पानी नहीं है, फिर क्या करे। जी। तो अल्लाह ताला की जो है ना कुछ हिकमतें होती हैं। बेशक अल्लाह रसूल हिकमतों को बेहतर जानता है। बेशक बेशक। हजरत मैंने आपकी वीडियो जो ऑडियो वगैरह सुनी और सब ये सुनता हूँ, तो असल में मतलब इनकी अकल पे पर्दा पड़ा हुआ है, समझ में आता है। नबी की शान मतलब इनको समझ ही नहीं आती। सही कह रहे हैं आप। अरे यार जो नबियों के नबी हैं, अल्लाह ने, मैं आपके सलाम का जवाब दे देता हूँ। जी जानने के लिए मैं ये सब पूछ रहा था आपसे। अच्छा जी। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मैं तो हजरत मतलब हमारे यहाँ सब वही सुन्नी हनफी बरेलवी ही हमारे गाँव में सब। जी जी जी। और मिलाद वगैरह सब होती है, फातिहा वगैरह सब कुछ होता है। देखिए मिलाद कोई करे ना करे, जी, मिलाद करने ना करने से जी कोई फर्क नहीं। मिलाद जो है ये सुन्नियत की एक शाख है। बिल्कुल ठीक है। जी। अकायद ठीक होने चाहिए। अकायद ठीक होना चाहिए, अकायद दुरुस्त होना चाहिए। मिलाद करेगा उसका सवाब मिलेगा। जी हजरत। और अल्लाह बेहतर जानता है कि उसका क्या अजरता फरमाए। जी जी बेशक। ठीक है जी हजरत। तो ईमान दुरुस्त ना हो, अकीदा दुरुस्त ना हो, रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ के रसूलुल्लाह की शान में तौहीन करता हो, वो मिलाद नहीं कुछ भी करे तो कुछ असर नहीं होने वाला।
जी बिल्कुल बिल्कुल बेशक। ये हजरत मैं अपना सवाल कुछ एक रखता हूँ, एक दो हाँ, थोड़ा आप, जैसे सब कुछ देने वाला तो अल्लाह है बेशक, जी ठीक है। मुझे मतलब सिर्फ ये जैसे कोई डायरेक्ट मांग लेते हैं, जैसे मान लीजिए मजार पे जाके, जी। या ऐसे भी गैब में भी, कि जैसे लोग बोलते हैं कि हाँ या फला जो भी मदद फरमा दे, ठीक है। तो हजरत ये मतलब थोड़ा सा मुझे इस पे थोड़ा इश्काल होता है कि ये अच्छा दुरुस्त है या क्या, मतलब क्योंकि जी हाँ जी दुरुस्त है, क्योंकि डायरेक्ट किसी को नहीं मिला अल्लाह ताला से। जी जी वो तो है, अल्लाह ताला से डायरेक्ट किसी को नहीं मिला, बल्कि जराए से मिला, जरिए से मिला। जी जी हम और आप किसी न किसी का काम करते हैं या हम अपना कोई कारोबार करते हैं, जी जी तो कोई जरिया बना हमारा। जी जी। हम कोई माल बेच रहे हैं, जी जी, तो पैसा कमाने का जरिया हमारा माल बना। जरिया, हाँ हाँ हाँ। किसी ने हमारा माल खरीदा, उससे हमारे पास पैसा आया। जी अल्लाह ताला ने जरिए बना दिए हैं। जी हजरत आपने एक जी, मिनट, जी, आपने जी, किसी को कोई उधार पैसा दिया, जी जी आपने किसी को उधार पैसा दिया, तो वो पैसा आपने किसी से मांगा कि लाओ भाई पैसा दो, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। ये मैं वो मोटी मोटी बातें बता रहा हूँ जिसका कोई इनकार नहीं कर सकता, जी जी बिल्कुल, ठीक है। मान लीजिए आजकल के दौर में कई सारे ऐसे कमजोर आदमी हैं, कोई लाचार आदमी है कि लोगों के पास जाते हैं मांगने के लिए जी जी बिल्कुल, कि अल्लाह के नाम पे दे दे। क्या किससे रहे हैं? हमसे कह रहे हैं, हमसे कह रहे हैं ना। जी जी वहाबी देवबंदी भी देते हैं, जी जी देते हैं, हालांकि वो झिझकाते हैं, वो एक अलग बात है। और वहाबी देवबंदियों ने लॉकडाउन हटा भी है, जी हाँ 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 बांटा है ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लोगों की मदद की है ना। हाँ बिल्कुल। ये कहते हैं अल्लाह के सिवा कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। जी वाकई अल्लाह के अलावा अगर किसी को कोई मदद नहीं कर सकता, जी, तो फिर इन्होंने कैसे मदद कर दी? वो या ये खुदा बन गए? जी जी, जाति और अताई का फर्क मतलब कर नहीं पाते हैं जी। अल्लाह जाति, ये शैतान है, मुसलमानों को गुमराह करने के लिए निकले हुए हैं, ये अंग्रेजी टोला है। जी जी समझे हजरत? जी। तो अब मैं इनके घर का जवाब दूं, जी जी, जब तक बात को, इसमें भी मैं और भी कई सारी बातें बता सकता हूँ, मगर बात को लंबा ना करके, बहुत कुछ बता सकता हूँ मैं, बिल्कुल बात को लंबा ना करके डायरेक्ट देवबंद पहुँचते हैं, जी जी, है ना। थानवी जी के बाप को पकड़ के लेके आते हैं। अच्छा अच्छा, थानवी अपनी किताब में लिखता है अपने पीर का तज़किरा करते हुए जी कि थानवी का कोई पीर भाई था, जी, और कास्ट से शायद वो जोलाहा हो, उसमें जोलाहा लिखा है कि अच्छा, कौम हाँ, से हाँ, बिरादरी से जो है वो जोलाहा था। और जी, एक वक्त उस पे ऐसा आया कि बहुत ज्यादा परेशानी का हाल आ गया, बहुत ज्यादा तंगदस्ती में गिरफ्तार हो गया। तो अपने पीर की वो कब्र पे पहुंचा और जाके पीर से डायरेक्ट मांगने लगा। वो हाँ वो वजीफा वगैरह मांगने लगा जो एक आना रोज मिलता था, वो मैं सुना मैंने आपको। हाँ, जी जी बिल्कुल। अरे हजरत मुझे याद, सारे हवाले याद हो गए जो आपके मतलब थ्रू जो मैंने सुना, या और भी दीगर इनके सुना, सब कुछ याद हो गया मुझे। मैं इन देव के बंदरों से भी बात करता हूँ ना, तो एक ही मौजू पर अगर बात करूंगा ना, जी जी, तो एक तरह से मैं बात नहीं करता, अलग अलग अंदाज में समझाने की कोशिश करता हूँ। आप हजरत उन्हीं को पकड़ लेते हैं, उनके सवाल में उन्हीं को फंसा के वो, क्योंकि उसके घर में सारा कुछ वही लिखा हुआ है। हाँ, यही तो मेरा काम है, इसीलिए तो ये गाली बकते हैं मुझे। कहते यार ये उल्टे हमारे गले में क्यों डाल देता है। अभी जस्ट 10 मिनट पहले मैं एक वो अजहरी नेटवर्क या किसी पे आपकी ऑडियो अपलोड हुई है। हाँ, ओनली अजहरी नेटवर्क पे। जी, किशनगंज का एक बंदा आपको गाली दे रहा है वो। हाँ, वो हाँ, अभी मैं सुन रहा था 10 मिनट पहले, मैंने सोचा आपको फोन लगाता हूँ थोड़ा इस वजह से। वो साले बदमाश है ये, साले बात करने का तरीका नहीं है हजरत, क्या कहेंगे हजरत। ये मौलवी होके गाली पढ़ के आते हैं, या गाली इनको सिखाई जाती है, या ट्रेनिंग दी जाती है, अल्लाह बेहतर जाने। बताइए हजरत, इख्तिलाफ मैं एक आम आदमी हूँ, बात करना है। जी 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 जी, मैं आम आदमी हूँ और पेशे से मैं ड्राइवर हूँ। जी मालूम है, हाँ मालूम है। अगर ऐसा काम करूँ तो मैं करूँ। जी जी बिल्कुल, और मैंने किया भी है। जी जी, तो क्या करेगा शुरुआत में जब मैं इन लोगों से निकला था, जी जी, तो जब मैंने इनके हकीकत को जान लिया तो मुझे बड़ा गुस्सा आता था इन पे, ये जब झूठ बोलते थे।
जी जी जी। तो मैं इनको डायरेक्ट छूटते ही गाली बक दिया करता था पहले। और मेरी जो पुरानी ऑडियो है उसमें किसी किसी में गाली मिल भी जाएगी। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, मैं इनको नहीं बख्शता था, हाँ, मगर हमारे उलमा ने मुझे बहुत समझाया कि नहीं मुहर्रम भाई, इनको तुम मत कुछ कहा करो। जी अब जी, तो मैं एकदम 0 पॉइंट पे आ गया हूँ, इनको कुछ भी नहीं कहता ज्यादा। हाँ मैं सुना, अगर मैं कहता भी हूँ तो उन अल्फाजों में कहता हूँ जी जी कि जिसको मतलब बुरा, उसको मैं कहूँ और बुरा भी ना लगे। जी जी, हाँ हाँ, दूसरे तरह से। हाँ आज जी, अगर आपकी ऑडियो सुनता था, आज बात कर रहा हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। शुक्रिया जज़ाकल्लाह। बहुत अच्छा लग रहा है सही, मतलब आपकी ऑडियो में 1 साल से लगभग सुन रहा हूँ। अच्छा, लेकिन अच्छा। आज लाइव बात कर रहा हूँ तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी हैरत, मैं अच्छा, सामने वाले को पहचान कर ही बात करता हूँ। जी जी हैरत। अच्छा, तो इसमें एक सवाल मैं थोड़ा सा करना चाहता हूँ। हाँ हाँ बोलिए। जैसे ठीक है, वो मतलब देने वाली जात या अच्छा, शिर्क वाला समझ में आ गया ना, डायरेक्ट मांगने वाला। हाँ, डायरेक्ट मानो समझ में आ गया, लेकिन हैरत इसमें एक मैं थोड़ा सा सवाल करना चाहता हाँ हूँ बोलिए। कि जैसे कोई बीमार है, ठीक है हैरत, अच्छा ठीक है। तो हम कहेंगे या अल्लाह शिफा अता फरमा दे। जी। तो मुझे लगता है इसमें भी कैटेगरी है क्या हैरत, जैसे और हम किसी के सामने तो नहीं कह सकते इनको वो आप शिफा अता फरमा दे, कहेंगे तो अल्लाह से ही, लेकिन हाँ उनके जरिए से हो, वसीले से तो दुआ कर सकते हैं, हाँ है ना हैरत। जी। हाँ, तो इस तरह से मान लीजिए आपने जैसे ये बात कही कि हम किसी से कैसे कह दें डायरेक्ट जी उनके जरिए से। मान लीजिए किसी की तबीयत खराब हो गई, जी जी, ठीक है, अब कोई बंदा अल्लाह के वली की बारगाह में चला गया, अब वो वहां जाके दुआ कर रहा है, या अल्लाह मैं तेरे वली की बारगाह में आया हूँ, तेरे महबूब की बारगाह में आया हूँ, इनके जरिए से, इनके वसीले से मेरी ये परेशानी हल कर दे, मेरी ये मुसीबत टाल दे, मेरी ये बीमारी को दूर कर दे, जी, तो ये बेहतर है, बेहतर बेशक, दुरुस्त है, जायज है, ठीक है। मगर देवबंदी मौलवी याकूब की कब्र पे जाके उसकी कब्र की मट्टी खत्म कर चुके हैं। जी जी जी, वो जो उसकी कब्र से मट्टी लेके जाके बांध लेता उसे ही आराम हो जाता, उसे ही आराम हो जाता। जी, और जो नहीं लेके जाके बांधता, यानी पता चला कि उसे आराम नहीं होता। यानी जो मट्टी ले जाके बांध रहा है उसे ही, ये जो लफ्ज है ना, उसे ही जी ये लफ्ज बता रहा है, यानी जिसने मट्टी ले जाके बांधी उसे ही आराम हुआ, बाकी जो लोगों ने नहीं बांधी उसे आराम नहीं हुआ। आराम नहीं हुआ, क्या बताऊं। अरे मैं सारी चीजें इनके घर से हवाला देता हूँ। आप बिल्कुल उन्हीं के घर से उन्हीं को पकड़ लेते हो। ये बड़ी ये देखा मैंने, बड़ी खूबी उन्हें, क्योंकि अभी मैं जमशेद अली कादरी भाई, मैं उनसे इन चीजों पर जी हाँ नामे इनसे हुक्म लगवाता हूँ, हुक्म लगवाते हैं। हाँ, मैं पहले नहीं कहता कि ये वो, मैं ऐसा करता ही नहीं जैसे दूसरे लोग करते हैं, उनको जवाब देते हैं। मैं इतना सरदर्दी पालता ही नहीं हूँ। मैं नहीं कहता हूँ कि ये जायज है या जायज है, या मैं सही साबित नहीं करता हूँ। सब उससे ही करवाता हूँ। आपने एक को कहा, मैं सुना आपने कहा कि जो नबी के सामने गुस्ताखी करे वो क्या है, उन्हें डायरेक्ट कहा काफिर। आपने उसकी इबारत पेश कर दी, उसके बाद मान नहीं रहा है, वो कह नहीं ये है वो है ये है। मैं इन लोगों से इस चीज पे बहस ही नहीं करता कि ये जायज है या नाजायज है। जी, इस पर मेरी आज तक कभी कोई बहस ही नहीं देखी होगी ज्यादा। हाँ बिल्कुल। वो अगर कोई कहता है कि ये नाजायज है, मैं कहता चल ठीक है, कोई बात नहीं है, अब ये बता दे ये नाजायज है या गलत है या शिर्क है या कुफ्र है, तो सिर्फ और सिर्फ बरेलवियों के लिए है, या दुनिया का कोई भी किसी भी तबके का, किसी भी फिरका का, किसी भी जमात का अगर इंसान करेगा तो उस पर भी यही हुक्म आएगा। बस इतना पूछता हूँ। और वो हैरत करते हैं, हाँ सब पे हुक्म आएगा, फिर आप उसका हवाला देते हो, फिर मानता नहीं है। बहुत हंसी आती है सुन के, सही बता रहा हूँ मैं। तो आप हवाला देते हो, फिर मानते नहीं, वो तावील करने लगता है, ये है नहीं, ये है वो है। बताने भी नहीं देते ये लोग हवाला, मतलब कुत्ते की तरह भौंकने लगते हैं। हाँ बिल्कुल। वो बीच में शोर मचाने लगते हैं कि मैं जो हवाला बता रहा हूँ वो समझ में ही ना आवे। हजरत असल में क्या है ना, इनको इल्म नहीं है, ये 2-4 दिन जमात वगैरह में गए हैं, हाँ। उसके बाद वहीं से कुछ सुन लिया। इनके बड़े बड़े मुफ्तियों को इल्म नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, इनके बड़े बड़े मुफ्तियों को धूल चटाई है जी। इनकी किताबों में क्या लिखा है अल्हम्दुलिल्लाह, यही वजह है कि मेरे काफी भाइयों ने तौबा की है अल्हम्दुलिल्लाह। जी। और उसमें एक सैयद आले रसूल भी हैं, हाँ, जो कि जमात से निकल के आए थे। हाँ जी बिल्कुल, ऑडियो लगाया आपने, लगाया मैंने सुनी है, मैंने आपके लगभग सारे ऑडियो सुने हैं जी।
اور الحمدللہ ایسے بھی بہت بھائی ہیں جو پہلے ان لوگوں میں اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، کام کرتے تھے، ان لوگوں سے محبت رکھتے تھے، جی 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 وہ بہت سارے بھائی ان لوگوں سے دور ہوئے ہیں الحمدللہ آڈیو سن کے. اور وہ حضرت ایک حوالہ جو آپ دیتے ہو وہ بھی بہت اچھا لگتا ہے مجھے، جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کو یہ معلوم نہیں کہ عورت کے پیٹ میں کیا ہے، تو آپ وہ عبداللہ راجپوت کا ایک حوالہ دیتے ہو کہ وہ بتایا تھا کہ بیٹا ہو یا بیٹی، پھر یہ چپ ہو جاتے ہیں. بہت زبردست حوالہ، بہت زبردست لگا مجھے صحیح میں. آپ کا مطالعہ بھی اچھا ہے. تھانوی کے تعلق سے یہ کیسے بتا دیا جی یہ مرتضی مجذوب نے کہ تھانوی کی اماں کو 2 بچے پیدا ہوں گے اور دونوں صاحب نصیب ہوں گے ہاں ہاں اور دونوں لڑکے ہوں گے. بتائیے. ایک کا نام یہ رکھنا، ایک کا نام یہ رکھنا. اب بتائیے. اور اس وقت بتا رہا ہے جبکہ تھانوی کا باپ ہی نامرد ہو چکا ہے. جی 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 بتائیے. میں نبی کے علم میرا اس پر بھی اعلان ہے، چیلنج ہے اس پہ بھی. اچھا کہ تھانوی کے اوریجنل باپ کا حوالہ پیش کر دو، میں 1 لاکھ روپے دوں گا. ہاں ہاں اس پہ بھی ایک بار کافی بحث ہوئی تھی، میں نے سنی. کئی شیطانوں سے میری بات ہوئی ہے اور میں یہ بات کرتا ہوں سے ہی ہوں جو سالے شیطان ہوتے ہیں مجور ہوتے ہیں. جی ہاں بالکل. جو صحیح بات کرتا ہے میں اس سے صحیح بات کرتا ہوں. آپ کے بات کرنے کا انداز کافی اچھا ہے، صحیح بتا رہا ہوں میں. بہت کافی امپریس ہوتا ہوں آپ کے بات کرنے کے انداز سے کافی، کیونکہ حضرت دیکھیے انسانی فطرت اگر کوئی گالی دے گا تو غصہ تو آئے گا ہی. میں سادہ آدمی ہوں تو سادہ آدمی تو سادہ ہی رہتا ہے نا. جی جی بالکل. چاہے کتنا بھی اس کے اندر سدھار پیدا ہو جائے. جی 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 مگر سادے آدمی کا جو مزاج ہے وہ رہتا وہی ہے. جی جی بے شک بے شک بالکل بالکل. تو یہ جو حضرت ہے یہ جو ہے یہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کمال کا انکار کرتے ہیں مجھے بڑا غصہ آتا ہے حضرت. جی دیکھیے یہ کیسی انسانیت ہے اور کیسے ہم امتی ہیں کہ جس نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، جس اللہ کے محبوب کی امت میں پیدا ہوئے ہیں، اسی اللہ کے محبوب کی ہم توہین کر رہے ہیں، اسی اللہ کے محبوب کے ہم کمال کا انکار کر رہے ہیں. کہتے ہیں دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، دیوار کے پیچھے کا علم نہیں. بتائیے. ہاں جبکہ اللہ نے سب کچھ سکھا دیا. قرآن میں اللہ نے کہا کہ ہم نے محبوب کو سب کچھ سکھا دیا جو نہیں جانتے تھے. اور رشید احمد گنگوہی جو ہے وہ عرش پہ چلتے ہوئے قلم کو مطلب دیکھ لیتا ہے. جی اور پیٹ کے بچے کو یہ دیوبندی دیکھ لیتے ہیں بالکل. اور نبی کو نہیں مانتے. رسول اللہ کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے. اور یہ وہ علم کو دیکھ لیتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اعلان کیا کہ یہ 5 چیزیں وہ ہیں جن کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. جی 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 جی. مگر ان شیطانوں کو یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں نہیں جانتا، کیسے نہیں جانتا. اللہ کی بغیر عطا کے کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا. اللہ کے بغیر جنائے کوئی نہیں جانتا. جی بے شک بے شک. اللہ تعالیٰ خود جانتا ہے، خود جاننے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ جس کو بتا دے، جس کو اس کا علم دے دے، وہ بھی جان لیتا ہے. جی جی عطا کر دے. اور وہ ہے تو آیت بھی تو ہے کہ اللہ اپنے غیب کو کسی پہ مسلط نہیں کرتا اپنے پسندیدہ رسولوں کے. تو حضرت یہ تو بالکل واضح ہے، یہ ان کے عقل پہ ہی پردہ پڑا ہے. اچھا علم غیب پر بہت سارے لوگوں سے میری بات ہوئی ہے جو لوگ علم غیب کا انکار کرتے ہیں. جی جی. تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ قرآن کی یا کوئی حدیث، کوئی ایسی قرآن کی یا تو کوئی آیت یا کوئی حدیث ایسی پیش کرو جس میں یا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہو کہ میرے یہ نبی غیب نہیں جانتے اور میں نے ان کو غیب عطا نہیں کیا، یا پھر حدیث کوئی ایسی پیش کرو جس میں رسول اللہ یا یہ فرماتے ہو یا کوئی نبی یہ فرماتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں غیب عطا نہیں کیا اور ہم غیب نہیں جانتے، یا میں غیب نہیں جانتا اللہ تعالیٰ نے غیب نہیں دیا. کوئی پیش نہیں کرتا. دکھاؤ حدیث یا قرآن کی کوئی آیت. بس یہ ثابت نہیں کر پائیں گے، دکھا نہیں پائیں گے. ہم یہی ساری چیزیں حدیث سے قرآن سے ثابت کر دیں گے انشاءاللہ. حضرت بس یہ گنی چنی 2 چیزیں لائیں گے کہ حضرت ایسا طرح کا ہار گم ہو گیا وہ معلوم نہیں تھا. دیکھیے معلوم نہیں تھا حضرت. جی جی حضرت مجھے معلوم، میں تو سمجھ رہا ہوں. جی جی بس یہی 2-4 چیز لے کے آتے ہیں یہ کہ ہاں یہ معلوم نہیں تھا وہ معلوم نہیں تھا. کیسے صحیح کرتے ہیں حضرت آپ؟ کیسے 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 مسلمان کہنے والے لوگ ہیں جو نبی کمال کو مانتے نہیں ہیں؟ بتائیے. جو نبی تحدث سارا، اچھا نبی کو تو چھوڑو، جو اللہ کا خاص بندہ ہوتا ہے، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، جی جی وہ آنکھیں بند کر کے جی زمین و آسمان کی چیزوں کو دیکھ لیتا ہے. جی جی حضرت. جی جی. تو کیا اس ولی کے آقا نہیں دیکھیں گے؟ بے شک دیکھیں گے حضرت. بے شک. وہی تو دوسری بات جی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جی اس قرآن میں ہر چیز کا روشن بیان ہے. روشن بیان ہے. جی جی جی.
इस कुरान में हर चीज का, हर शय का हर शय का रोशन बयान है। जी तो जब इस कुरान पाक में हर चीज का रोशन बयान है तो क्या अल्लाह ताला ने कुछ चीजों का इल्म रोक दिया? नहीं सब चीज कुरान में है जी जी और उस सब चीज का इल्म कुरान में दिया है और वो कुरान अपने महबूब को अता किया है, वो कुरान महबूब के सीने पे उतारा है। जी जी हजरत, उस सब चीजों का इल्म कुरान अपने महबूब को सिखाया है। जी बेशक 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 सिखाया है। बहरहाल बस मैं तो यही कहता हूँ जी हजरत कि इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसकी तारीफ करता है और जिससे नफरत रखता है उसकी कोई ना कोई कमी तलाश करता है। जी जी हजरत। और जो गंदी मक्खी होती है ना, ये मक्खी दो तरह की होती है, जी एक गंद पे बैठती है और एक फूल पे बैठती है। हाँ। जो गंद पे बैठती है वो बीमारी फैलाती है और जो फूल पे बैठती है वो शहद मतलब देती है, वो शिफा देती है। बेशक बेशक बिल्कुल हजरत। वो अल्लामा इकबाल ने एक शेर कहा है हजरत, उसको भी समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि जी मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं जी, ये जहाँ चीज का है लोहो कलम तेरे हैं। बेशक बेशक। मतलब आप अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं तो इतने बड़ा आपका दर्जा हो जाए कि आप लोहो कलम पे भी लिख सकते हैं या उनको बदल सकते हैं जो भी। तो ये चीज इस शेर को भी समझ जाए तो बहुत, अल्लाह के वलियों की दुआओं से तकदीरें बदल जाती हैं, तकदीरें बदल जाती हैं। बेशक बेशक जी जी। जो रसूलुल्लाह का गुलाम हो गया अगर वो दुआ कर दे तो लोगों की तकदीरें बदल जाती हैं। जी हजरत, कितना जबरदस्त शेर है, ऐसा हुआ है। हाँ बेशक, हाँ जी हजरत। और जी हुजूर ख्वाजा गरीबनवाज रहमतुल्लाह अलैह ने, रसूलुल्लाह की औलाद ने जी अपने एक मुरीद को भेजा, खुद नहीं गए, जी और कहा जाओ अना सागर पे जाओ जी और ये कटोरा ले जाओ और कहना कि ख्वाजा बुला रहे हैं। जी जी ठीक है जी हजरत। जादूगर जयपाल का नाम सुना है ना? जी हाँ बेशक बेशक, हाँ बिल्कुल हाँ। सुना है, वो उनसे लड़ाई हुई थी। हाँ बहरहाल तो वो मुरीद गए, जी उस मुरीद ने जाके कहा कि ए पानी तुम्हें ख्वाजा बुला रहे हैं। सारा पानी जरा सारे कटोरे में आ गया। कहाँ इतना बड़ा समंदर, कहाँ इतना बड़ा तालाब है? जी जी। क्या एक बाल्टी पानी एक जग में आ जाएगा? नहीं आएगा ना, नहीं आ सकता। तो यहाँ एक पूरे तालाब का पानी एक छोटे से कटोरे में आ गया, कटोरे में आ गया। हाँ जी, वो करामात हजरत, करामात वलियों की करामात होती है जी। इसीलिए कहा है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लो कलम तेरे हैं, कलम तेरे हैं, इसी को कहा गया है। जी जी बेशक बेशक बेशक। अल्लाह वाला जिस चीज पर जी हुक्म कर दे वो चीज उसके ताबे हो जाती है। हजरत वो हदीस कुदसी भी तो है कि अगर तुम नवाफिलों के जरिए अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेते हो तो अल्लाह तुम्हारा आंख बन जाता है जिसे तुम देखते हो, अल्लाह तुम्हारा हाथ बन जाता है जिसे तुम पकड़ते हो। तो हर इससे भी तो साबित होता है कि बहुत सारे कुरान में भी है ये आयत, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, समझे जी। हाँ, यद माने हाथ, अल्लाह माने अल्लाह। जी यदुल्लाह अल्लाह का हाथ, उनके हाथों पर। जी जी अल्लाह का हाथ उनके हाथों पर। किसके हाथों पर? जो अल्लाह के हो गए, अल्लाह के हो गए। बेशक बिल्कुल बिल्कुल। बहरहाल हाँ, ये मुतशाबे आयत है। जी 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 हाँ, ये मुहक्कम आयत नहीं है। हजरत मुतशाबे आयत का तो मतलब वो हम तर्जुमा वगैरह तो नहीं होता ना उसका? होता है मुतशाबे आयत का, मुहक्कम आयत का तर्जुमा, उसका आयत मुक़त्तियात का तर्जमा नहीं होता है। अच्छा मुक़त्तियात, जी जी। हाँ, मुक़त्तियात बोला जाता है जैसे अलिफ लाम मीम हा मीम आइन सीन काफ नून स्वाद, ये सब जो है जितनी भी है ये सब आयतें मुक़त्तियात हैं। जी 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 हाँ। अच्छा हजरत एक सवाल और पूछना है थोड़ा सा बस। बोलिए। जैसे एक मैंने सुना है जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह हैं, तो उनका एक कॉल है या उनकी किताब में शायद मतलब सुना था मैंने कहीं कि वो कहते हैं कि जो मेरा मुरीद मुझे कहीं से भी बुलाएगा तो मैं मदद के लिए आ जाऊंगा जी। तो हजरत थोड़ा सा इसका इसमें ये है कि अगर 1 लाख मुरीद हैं और अगर 10,000 भी सब पुकारते हैं तो कैसे कर सकते हैं?
मतलब सबके पास थोड़ा मतलब एक मन में डाउट आता है ये, जी तो इसका है थोड़ा मतलब थोड़ा सा वजाहत कर दीजिए। चलिए आसान तरीके में समझा देता हूँ। जी जी जी। मौत का फरिश्ते कितने हैं? वो तो एक है। एक है। जी। अब एक ही वक्त में हाँ कई जगह एक्सीडेंट हो जाते हैं, कई जगह मौतें हो जाती हैं, कई जगह अस्पतालों में खत्म हो जाते हैं, एक ही फरिश्ता कैसे कंट्रोल करता है? हाँ हाँ ये सही कहा आपने। वो मतलब अच्छा अच्छा हाँ 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 जी, बताइए बताइए। हाँ हाँ नहीं हाँ आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने उस फरिश्ते के लिए उस कायनात को समेट दिया है। समेट के, अच्छा जी 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 जी, अच्छा अच्छा हाँ हाँ हाँ। इसी तरह जी हुजूर गौस आजम भी फरमाते हैं कि जो दुनिया है, जो कायनात है, जी ये ऐसा है जैसे हथेली पर राय का दाना। मतलब उन्होंने वो वो ऐसा देखते हैं कि जैसे राय का दाना, जैसे उनके लिए वो समेट दिया गया है। हाँ। तो वो चारों तरफ से देख लेते हैं। फिर वही शेर आएगा यहाँ जी कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लोहो कलब तेरे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हैरत इस शेर पे तो सारा अकीदा हैरत, मानते कि नहीं आप? आला हजरत ने इसीलिए तो फरमाया था जी कि अल्लामा इकबाल के तो ये दो शेर ही काफी हैं उनकी बख्शिश के लिए बेशक बेशक बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, अगर हो इसी मकामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। सब कुछ नामुकम्मल है, बेशक सुभान अल्लाह, क्या बात है। हाँ, तो मैं इन लोगों में, इन शैतानों में 15 साल से ज्यादा की जिंदगी गुजार के आया हूँ। जी जी हाँ अपने मैं इनकी रग रग से वाकिफ हूँ। जिस तरह रगों में खून दौड़ा हुआ है, खून दौड़ता है, उसी तरह मैं इनको पहचाना हुआ हूँ। हाँ और मैं इनको जानता हूँ ये किस बात पर जो है वापस पलट आएंगे और किस बात पर मैं इनको पलटने नहीं दूंगा, इसीलिए मैं इनके सारे रास्ते बंद करता हुआ चलता हूँ। ये बड़ी अच्छी चीज है, आप उनको उसी के मसले में। जामिया अजहर मिस्र यूनिवर्सिटी से कॉल आया एक बुजुर्ग साहब का, जी कातिब हैं, बड़ी बड़ी मतलब वो किताबें लिखते हैं, बहुत बुजुर्ग हैं। बोले बेटा मैंने तुम्हारी कुछ गुफ्तगू सुनी और माशाल्लाह सुनकर बड़ा अच्छा लगा, बात करने का आपका अंदाज बहुत अच्छा है, और बोले कि उलमा को भी इसी अंदाज में जो है मतलब काम करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हैरत एक और जी बरेली शरीफ से भी फोन आया जी जी हाँ मैंने सुना था। तो बोले मैंने आपकी कुछ गुफ्तगू सुनी जी और बहुत अच्छा लगा, और जो तुम्हारी हाजिर जवाबी है जी जी जवाब है, बहुत पसंद आई। हैरत एक वो जामिया जो आप मिस्र से कह रहे हैं जी, तो वहाँ से एक पागल डॉक्टर का फोन आया था आपके पास, वो सुनी थी, 2-3 ऑडियो उसकी पड़ी थी। वो एक डॉक्टर कौन सा था जो कह रहा था सब बराबर है, ये है वो है। डॉक्टर कमाल अहमद था कोई पागल। हाँ वो बहुत हंसी आती थी उसकी बात सुन के मुझे। उसको आगरे के पागल खाने में या बरेली शरीफ के पागल खाने में एडमिट कराना था। मैंने कहा था कि बरेली शरीफ में जाके एडमिट हो जा, वहाँ तेरी रूहानी और जिस्मानी सब बीमारियां दूर हो जाएंगी। वो तो अजब पागल था। वो भी जामिया यूनिवर्सिटी से बोला था मैं मिस्र से फारिग हूँ, यहाँ से बोला कि मैं डबल PhD हूँ। मैंने कहा डबल नहीं तो 54 भी होगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। बोला मेरी 75 साल की उम्र है। मैंने कहा 75 नहीं 7500 साल का भी होता कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बिल्कुल बिल्कुल। बाद में गाली गलौज भी करने लगा था वो फिर उसी पे आ गया था। जी जी। तो फिर मैंने उससे बात ही करना छोड़ दी। हजरत देखिए एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, ऐसा ना हजरत देखिए मैं तो महाबदतमीज इंसान हूँ। नहीं मगर मैं चाहता नहीं कि मतलब मैं अपने अवाम अहले सुन्नत को ये सब। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मेरे बहुत सारे भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो मुझे कहते हैं कि नूर हसन भाई आप जो है मत क्या करो, ये गाली बकें तो सुन लो, कोई बात नहीं है। बहुत सारी माँ बहनें भी सुनती हैं, कई सारे भाइयों ने मुझे बताया कि भाई हजरत हम आपकी ऑडियो जो है ना पूरे परिवार के साथ सुनते हैं, तो आप मत क्या करो ऐसा। हजरत एक माँ बहनों से याद आया, एक तो अहले हदीस औरत का वो कॉल किया था, तो सलाम को जवाब दे रही है ऐसे करके। वीडियो को मैं कब से 10 साल देखा हूँ मैं। तो आया था ना, शायद आपको याद हो, एक अहले हदीस औरत का कॉल आया था जो। अच्छा हाँ समझ गया।
वो कम से कम 10 बार मैंने देखी है। कैसे कैसे पागल लोग हैं दुनिया में। हाँ, वो तो मेरे चैनल पे नहीं है, किसी और के चैनल पे है, या तो ओनली अज़हरी नेटवर्क पे है या फिर HS वर्ल्ड पे है। हाँ, मैंने सुनी आपकी ऑडियो उन सब चैनल पे भी आती है। हाँ, 10 चैनलों पर अल्हम्दुलिल्लाह इस गुनाहगार की ऑडियो जाती है हजरत। जी जी, नहीं अभी तो फिलहाल बस ओनली अज़हरी नेटवर्क पर ही जा रही है, मेरे खुद के चैनल पे भी नहीं पढ़ पा रही ज्यादा। जी जी है। हाँ, क्योंकि मैं असल में थंबनेल नहीं बनाना जानता हूँ ज्यादा। अच्छा, थंबनेल की परेशानी है, मुझे थंबनेल बनाने नहीं आता और झूठ बोलने भी नहीं आता कि साहब है कुछ और मैटर बना दो कुछ, तो ऐसा अपने आप को आता नहीं, सच बोल के काम करता हूँ जो भी काम करता हूँ। हाँ, मुझे एक और भाई थे, वो थंबनेल बना के दिया करते थे। अच्छा अच्छा। तो उनकी तबीयत थोड़ी अलील है, तबीयत खराब है। हजरत एक चीज कहना चाहूंगा जी कि जैसे जो सुन्नी हमारे बरेलवी लोग हैं, हाँ। तो पहले कहा जाता था कि मतलब एक आम कहावत की मतलब ज्यादा इल्म नहीं होता, ज्यादा लोग इल्म की तरफ नहीं जाते। हाँ। लेकिन जब आप लोगों की ऑडियो आने लगे, आप लोग सब, आप हो गए, ताहिर रजा साहब हो गए, जमशेद अली कादरी भाई हो गए, तो तब से जो सुन्नी आवाम ऑडियो सुनने लगी, तब से उनको इल्म होने लगा और हवाला भी मिलने लगा। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जानकारी हुई है हमारे भाइयों को, अल्हम्दुलिल्लाह। जी हजरत, जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा काम हजरत। मैं मतलब इसी वजह से इस मैदान में आया कि यार इन शैतानों का मुंह तो जो है जो इनकी सच्चाई है, जो इनका सड़ा हुआ बदबूदार चेहरा है, वो तो आवाम के सामने लाया जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल हजरत। हाँ। एक बात आपको बता रहा हूँ, एक हमारे यहाँ जमात आई थी, ठीक है जी। अब मेरे ही मोहल्ले में, ठीक है जी। तो जमात में जाने को बोल रहे थे, तो मैंने कहा क्यों भाई, जमात में क्या सिखाया जाता है, ऐसे ही बोला मैंने। जी। तो बोल रहा है कि चलो इल्म सिखाया जाएगा, तहजीब, नमाज का तरीका। मैंने बोला इल्म तो किसी को है ही नहीं वहाँ। हाँ। तो बोला कैसे? मैं बोला कि भाई आपके अशरफ अली थानवी साहब ने लिखा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म पागलों और जानवरों की तरह है, तो हाँ। तुम्हारे मुल्ला का इल्म तो सुअर की तरह। मैंने ऐसे बोल दिया, डायरेक्ट बोल दिया उसको। हाँ। तुम्हारे मुल्ला का इल्म तो सुअर से ही पत्थर होगा फिर जी। माजर। तो फिर उसके बाद वो चुप हो गया और वहां से निकल गए। और भी सुन्नी लोग थे यहाँ पे, हाँ। तो चुपचाप वो निकल गए, समझ गए कि ये सब जानते हैं हकीकत हमारी। हाँ। ये हमारे झांसे में आएंगे नहीं। जी। जी हजरत। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आप ही लोग की ऑडियो सुनते सुनते ये सब हमें समझ में आया हम लोगों को कि हाँ, मैंने जमीनी तौर पर भी बहुत समझाने की कोशिश की। जी हजरत। जी जी जी। मगर मतलब समझाने में नाकाम हो जाता था। जी। समझाता था, हवाले देता था, बताता था, लोग कहते थे किताब दिखाओ, जब किताब दिखा दी तो कहते थे अरे यार क्या पता किसी और ने लिख दी हो। हाँ 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 बिल्कुल, समझे। तो दिमाग खराब हो जाता था, मतलब क्या बोलूं मैं, बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता था, डिप्रेशन, बहुत ज्यादा मतलब दिमाग खराब हो जाता था, समझे। जी। हाँ, फिर लास्ट में आके मैंने यही सोचा कि नहीं, इनका सालों का चेहरा तो बेनकाब करना है इंशाल्लाह। जी जी। नहीं होती बहुत बड़ी, एक होती है दिल लगी, एक होती है दिल की लगी। जी दिल की लगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस गुनाहगार की दिल की लगी थी और इन शैतानों का चेहरा बेनकाब करना था और कर दिया, और इंशाल्लाह करता रहूंगा। और मेरे भाई और भी बहुत सारे खड़े होंगे और इंशाल्लाह सबको इस दुनिया से जाना है, एक दिन मैं भी चला जाऊंगा, तो इंशाल्लाह ऐसे नूर हसन और काफी पैदा हो जाएंगे। हजरत आप लोगों के ऑडियो से बहुत बड़ा फायदा हुआ है कि आवाम को अब पता चल रहा है कि हाँ क्या चीज है, क्या इल्म होता है या जो भी है, क्योंकि पहले तो लोग कुछ भी नहीं जानते थे, ये मतलब सब ऐसे नॉर्मल। मगर ये दीनी बातें कोई सुनता नहीं ज्यादा। जी है, जो लोगों की बातें होती हैं, जो खबरें होती हैं, उन पे देखो तो 2-2 लाख विवाह, 3-3 लाख, 4-4 लाख, 10-10 लाख, 20-20 लाख लोग मतलब उनको देख रहे हैं। जी जी जी। हाँ, नाटक, कहानी, चटकुल्ले, क्या करेंगे, बहुत कम है। अल्हम्दुलिल्लाह अपने बहुत सारे भाई ऐसे हैं कि जो पहले दूसरी चीजें देखा करते थे, अब वो नहीं देखते हैं। जी जी जी। मैं खुद पहले कुछ भी नहीं देखता, लेकिन सबसे पहले ऑडियो मैंने आपकी ही देखी है। अचानक वो इसमें फीड में चली गई तो मैंने सुना, तो फिर मैंने आपकी ऑडियो सुनता गया। उसके बाद फिर और सब, जैसे वो शेख जलालुद्दीन साहब की, फिर और मेरी ऑडियो शुरू में किसी के एकदम समझ में नहीं आती है। जी जी। हाँ, क्योंकि मैं जवाब नहीं देता हूँ। कई सारे हजरात ने मुझसे शिकायत भी की, जी मुझसे बोले कि वो यार नूर हसन भाई, हमने तो आपकी जब ऑडियो शुरू में सुनी तो हम तो सोच रहे यार ये पागल है, इसको तो जवाब आता ही नहीं। अच्छा। सामने वाला जवाब मांग रहा है, जवाब ही नहीं दे दिया है। अच्छा। बोले फिर हमने पूरी ऑडियो सुनी, तब जाके समझा अरे यार ये बात है। हाँ हाँ बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है और काफी अच्छा लगा क्योंकि काफी नॉलेज भी मिलती है आप लोगों के ऑडियो वगैरह सुनने से। तो मैंने इनको पहले ही बता दो ना तो ये रफू चक्कर हो जाते हैं।
तो मैं अनजान बन के इनसे बात करता हूँ। जी 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 मैं ये पहले ही नहीं खोलता कि मैं ये जानता हूँ वो जानता हूँ, ये हवाला ये वो हवाला, मैं हवाला देता ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ मुझे आपको बात करने का एक पैटर्न मुझे अच्छा लगता है, जैसे कोई देवबंदी वगैरह वो फोन करेगा तो सलाम करता है उसको और आप जवाब नहीं देते हो, फिर आप पूछते हो उससे कि तू मतलब इसको क्या समझता है, तो बोला बिल्कुल कुफ्र है, फिर आप उसी हवाले को उसी घर से बता देते हो, फिर वो मानता नहीं। ये पैटर्न बहुत सही है। इनके लिए यही ट्रिक है और यही ट्रिक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे और भी सुन्नी भाई इस्तेमाल करें। जी 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 यही हाँ इसी अंदाज में बात करें, काम करें। मैं तो चाहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ताहिर रज़ा कादरी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी, ताहिर रज़ा कादरी साहब और हमारे जमशेद भाई हैं, हमारे राहिल भाई हैं। राहिल भाई तो मुझसे पहले से ही करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी, उनकी भी ऑडियो सुनी है मैंने, और सबको हमारे जानता हूं। जमशेद भाई हैं, ताहिर भाई हैं, जी ये भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। शेख और जलालुद्दीन पहले चिश्ती। फारूक अशरफी भाई थे जी जी और उलमा तो हैं ही काफी सारे अल्हम्दुलिल्लाह। जी। अब वो और भी है सबसे जी। अच्छा काम हमारे मौलाना फारूक रजवी साहब ने किया है कि वो कंप्यूटर पे लैपटॉप पे लेके दिखा देते हैं कि देखो ये शैतान क्या बक रहे हैं। फारूक खान रजवी साहब ना? जी अरे हजरत, मैंने उनकी 3-3 घंटे की ऑडियो सुनी है जी, 4-4 घंटे की ऑडियो सुनी है मैंने उनकी, बहुत जबरदस्त। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह नौजवानों में फायदा हुआ है उनकी ऑडियो क्लिप सुन के। हजरत एकदम और अल्हम्दुलिल्लाह जी जी उनसे भी खतरनाक काम मैं करता हूँ, मैं इन शैतानों के मुंह से उगलवा देता हूँ बात करते करते। हजरत अल्लाह का शुक्र है। हालांकि जी जी बोलिए। मैं उनसे बड़ा तो नहीं हूँ, जी हाँ मैं बहुत छोटा सा एक अदना सा इंसान हूँ, अहले सुन्नत एक जर्रा हूँ। हजरत आप लोगों को शायद थोड़ा सा जानकारी होगी कि ये नेट पर ऑडियो पढ़ने से कितने लोगों को फायदा हो रहा है, शायद आप लोगों को मालूम भी नहीं होगा। बहुत से लोगों को फायदा है जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे। इसीलिए मैं खास करके मैंने जलालुद्दीन साहब से बात की, जी, फिर आपसे ये बात की, और अली खान से पहले मैं बात की थी, वो थोड़ा सा अभी भटक गया है, लेकिन वो भी काफी रद्द करता था इनका, बुराई वगैरह करता था। जी जी हाँ, थोड़ा सा वो बरेली शरीफ तक नहीं गया बंदा। जी हजरत, हमने कहा आइए बरेली शरीफ आइए। जी जी, मैंने सारी ऑडियो सुनी है, सारी ऑडियो जो आप और जलालुद्दीन साहब वहाँ गए बरेली शरीफ, वो आया नहीं, सारी ऑडियो कादरी साहब गए थे, मैं गया था, कादरी साहब जी जी जी, और जलालुद्दीन साहब को बुलाया था। जी जी बिल्कुल हजरत। हाँ, मैंने कहा ये भाई अपनी बात रखिए। हाँ हाँ, और खैरियत से आप हैं मतलब? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम है। अच्छा, नहीं ठीक है, काफी अच्छा लगा आपसे बात करके, काफी 1 साल से लगभग सुन रहा था आपकी वीडियो। जज़ाकल्लाह हज़रत। जी, देखिए बहुत सारे भाई जो है मुझे कॉल करते हैं, कहते हैं हजरत बड़ा सोच समझ के कॉल किया है, और मतलब बात करने तो बहुत मरतबा मूड बना, बात करने को चाहा मगर हिम्मत नहीं हुई। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक सादा आदमी हूँ, एक आम आदमी हूँ, सबसे बात करता हूँ और अपने सुन्नी भाइयों से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत नीचा निमाना होके और बहुत प्यार मोहब्बत से बात करता हूँ। सब तो मैं शैतानों के लिए हूँ। जी जी, वो तो मैंने ऑडियो सुनी है। सबसे अच्छा बात करने का अंदाज आपका ही है, पूरे जितने यूट्यूबर हैं। नहीं इतना भी नहीं, माशाल्लाह हमारे राहिल भाई बहुत अच्छी बात करते हैं। हाँ राहिल भाई जी जी बिल्कुल। हाँ, मैं असल में बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ कोई ऊंची बात। हाँ हाँ हाँ, राहिल भाई तो स्टैंडर्ड थोड़ा अलग। राहिल भाई मुझे समझाते भी हैं, कहते हैं यार दूसरे लोगों से भी कहवा देते हैं भाई नूर हसन भाई को संभालो। अच्छा, हाँ वो मेरी ऑडियो सुनते हैं। नहीं मेरी बात तो नहीं होती है। अच्छा, हाँ वैसे ही दूसरे लोगों से मतलब दूसरे लोगों तक बात पहुंचा देते हैं। जी जी जी, हाँ मेरी आज तक जो है बात नहीं हुई है फोन पर। अच्छा, हाँ मेरे नाम से शुरू में एक उन्होंने पोस्ट भी डाला था फेसबुक पे। अच्छा, कि हमारे नूर हसन भाई हैं, मिलिए इनसे, ये पहले देवबंदियों में रह चुके हैं, अब देवबंदियों का जो है बैंड बाजा बजाते हैं फोन पर। हजरत आपको इतनी जानकारी, क्योंकि आप वहाँ बहुत साल रह गए, तो उनकी अंदरूनी जानकारी। मैं इनकी किताब का मुताला भी बहुत किया है, काफी किया है। अच्छा, हाँ। और किताबें मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मंगा के जमा की हुई है यहाँ। जी, आप कभी लाइव में दिखाते हो? हाँ जी, हाँ, बिल्कुल। चलिए, मैं जो भी कहता हूँ इनकी ओरिजिनल किताबों से कहता हूँ, मैं वो बात कहता ही नहीं जिसका मेरे पास सबूत ना हो। इसीलिए मैं इनसे नहीं दबता हूँ। बेशक, बिल्कुल, बात पूरी हो या ना हो। जी, मैं बात आगे बढ़ाता ही नहीं जब तक कि एक बात फाइनल ना हो जाए, क्लियर ना हो जाए। और ये काम करते हैं कि एक को छोड़ के एक को भागा, एक को छोड़ के एक को भागा, एक को छोड़ के एक को भागा, मतलब ये लोग भागते ही रहते हैं।
जब ये फंसते हैं तो कहीं मत भागते रहते हैं। पहले इसी को क्लियर कर। हाँ, जब फंसते हैं तो फिर दूसरे टॉपिक पे कभी इल्म गैब पे जाएंगे, कभी हाजिर पे जाएंगे, कभी नूर बशर पे जाएंगे, कभी कहीं जाएंगे, कभी। जी, तो मैंने कहा एक पे बात कर, एक पे कभी ईद मिलाद नबी जो मौजू तुझे आसान लगे उस मौजू पे चुन के आ जा, रट के आ जा, 1 महीने का टाइम ले ले, 1 महीना याद करके आ जा। आप हजरत काफी तरीके से बात करते हो, लेकिन गुस्सा तब आता है जब नबी की शान में कोई कुछ कहता है। मैंने देखा है यार, जब हम अपने माँ बाप के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकते जी तो फिर उस अल्लाह के महबूब के लिए कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि जिस नबी ने ये फरमाया कि उस वक्त तक कोई कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक मुझसे अपने माँ बाप भाई बहन रिश्तेदार, हद तक अपने बीवी बच्चे, यहाँ तक कि अपनी जान से भी ज्यादा मुझसे कोई मोहब्बत न करे। बेशक कैसे यार बर्दाश्त कर लेगा हुजूर का उम्मती। हक है बिल्कुल। इसलिए मतलब गुनाहगार तो हो ही, इसलिए मतलब थोड़ा सा उल्टा सीधा निकल जाता है। और रसूलुल्लाह के गुस्ताख के लिए निकले तो कोई गुनाह नहीं। हाँ, नहीं, काफी अच्छा लगा है आपसे। मेरा तो खुलेआम चैलेंज है जी, और पूरी दुनिया के देवबंदियों को चैलेंज है अल्हम्दुलिल्लाह जी। जिसका दिल चाहे वो आ जाए और जिस मौजू पर चाहे वो उस मौजू को रट ले, चुन ले, आ जाए। जी, काफी बड़ी बड़ी मेहनत करके ये लोग आए हैं, बड़े बड़े सबक याद करके आए हैं ये लोग जी, मगर इनका सारा प्लान चौपट हो जाता है। और एक तो ये है कि ये कुत्ते बात नहीं करते, भौंका भांकी बहुत ज्यादा कर देते हैं, बहुत ज्यादा। हाँ, सुना मैंने। और फिर जब ये भौंका भांकी करते हैं ना तो अपना मिजाज है बिल्कुल शांति तरीके से बात करना। जी, बिल्कुल हजरत, बिल्कुल। हाँ, काफी अच्छा लगा हजरत आपसे बात करके आज। शुक्रिया जज़ाकल्लाह। आपका नाम क्या बताया आपने? जी, मेरा नाम आहिल खान। आहिल खान जी, चलिए बहुत अच्छी बात है हजरत। ठीक है हजरत, फिर जी आप और तहकीक करें, सर्च करें और कहाँ तक पहुँचे, किस नतीजे पर पहुँचे आपने बताया नहीं। आप अगर मुझे बताएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। हजरत मतलब अभी तो तहकीक चली, वही मैं 1-2 सवाल आपसे थोड़ा पूछा था वो शिर्क के मसले पे। अच्छा, तो आपने उसका जवाब दे दिया, ठीक है। अच्छा, तो और भी मैं हजरत कुछ सवाल अगर होंगे तो मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा। देखिए पहली बात तो मैं आलिम नहीं हूँ। जी हाँ हजरत, अकीदे के मसले पे तो आप जानते ही हैं। हाँ, अकीदे के मसले पे तो आप बता सकते हैं। हाँ, अकीदे के मसले पर इंशाल्लाह जब भी कोई बात करनी हो, कोई कंफ्यूजन हो, अभी भी पूछ सकते हो, बोलो अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है तो। हाँ, बस वही है मतलब। मगर मैं यही कहूंगा कि बस एक चीज याद रखना जी कि इस दुनिया में हम कुछ भी कर लें जी, आजाद हैं अभी हम। जी, यहाँ अमल करने को कहा गया है, ठीक है जी, बिल्कुल। यहाँ अमल की इजाजत है, यहाँ हम अमल कर रहे हैं। यहाँ अमल है, वहाँ हिसाब होगा। वहाँ अमल नहीं है, वहाँ सिर्फ और सिर्फ हिसाब। जी, बेशक। अगर यहाँ से हुजूर की मोहब्बत लेके मरे, जी, समझे, जी, और रसूलुल्लाह के वफादारों की मोहब्बत लेके मरे, जी, जो भी रसूलुल्लाह के वफादार हैं, जो भी रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने वाले हैं, जी, तो अच्छा है, बेहतर है, आखिरत भी बेहतर होगी। यहाँ से अगर जर्रा बराबर भी ईमान लेके गए, बेशक, है ना, बिल्कुल। और अगर यहाँ रसूलुल्लाह के दुश्मनों का साथ दिया, जी, मतलब गुस्ताखी नहीं की, सिर्फ साथ भी दिया, जी, तो पकड़ हो सकती। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि यहाँ अमल है, यहाँ अमल हम कर सकते हैं जितना चाहें। जी, अच्छा या बुरा जो भी अमल है, हाँ, बिल्कुल, ठीक है। जी, मगर अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया कि अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। हाँ, बेशक। अच्छे अमल करोगे तो अजर मिलेगा, बुरे अमल करोगे तो उसकी सजा मिलेगी। जी, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, हाँ हजरत, एक जो आपने बोला, एक सवाल थोड़ा सा दिल में आ गया अभी। अच्छा, क्या? कि जैसे मान लीजिए कोई इस पे मजार पे जाता है। अच्छा, ठीक। जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन साहब? हेलो, हाँ जी, कौन भाई? जी, शब्बीर बोल रहा हूँ। अच्छा, जो दोपहर में कॉल किया था? हाँ जी। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम शब्बीर भाई जी। जी, बोल रहा हूँ, जो दवाई बोला ना था आपका बाल के बारे में। जी, तो
तेल 200 ग्राम का आता है ना, 200 ml का, हाँ 200 ml है। और 500 ml नहीं आता है आपके पास? नहीं 500 ml नहीं है हजरत। तो तेल लगाने से क्या ऐसे ही बाल नहीं उबलेगा ना, कैसे बाल? बालों की बाल के लिए- कंडीशन, जी बालों की कंडीशन आपने दिखाई मुझे? और बालों की कंडीशन दिखाने पर लेडीज का तो लेडीज का है? हाँ अच्छा, कंगे में काटते वक्त कंगा भर भर के आ रहे हैं कि ऐसी मामूली से? हाँ हाँ हाँ, कंगन दुकाने नहीं पा रहा है, कंगन दुकाने से बहुत चला रहा है। अच्छा से। ठीक है, इंशाल्लाह रुक जाएंगे, 1-2 महीने में इसका रिजल्ट मिल जाएगा इंशाल्लाह। 1 महीने भी मिल सकता है, 1 महीने से पहले भी मिल सकता है, और 1 से 1.5 महीना भी लग सकता है। तो कितने दिन खाने पड़ेगा? खाना नहीं है उसमें, लगाना पड़ेगा? जी जी जी, 2 लगाना पड़ेगा? 2-3 महीना उसको यूज कीजिए। 2-3 महीना ना? हाँ, और आगे को आप यूज करना चाहें तो करें, बेहतर होगा, अच्छा होगा, क्योंकि दूसरे ऑयल भी कोई सस्ते नहीं है। नहीं और दूसरे ऑयल अगर मान लो सस्ता मिल भी जाए तो उसमें रोकने की कैपेसिटी नहीं है। ये बालों को रोकता भी है, और अगर बाल छीड़े हो जाते हैं बाल तो उनको उगा के भी ले आता है। वो करने आता है ना जी और लंबा ही होगा फिर बाल? जी जी, बालों को घना लंबा मजबूत बनाता है, मुलायम बनाता है। तो एक बोतल कितने दिन का आएगा फिर? एक बोतल जो है वो 1 महीना चलेगा। 1 महीना चला जाएगा जी। तो दाम कितना पड़ेगा? लेके 250 रुपए से और 300-350 रुपए तक भी खर्चा आ सकता है। क्या 50? हाँ, एक अगर फाइल मंगाते हैं एक हाँ। कोर्स, तो 250 रुपए से लेकर 300 रुपए तक खर्चा आएगा। अब आप किधर हैं, कहाँ हैं, दूरी के हिसाब से मतलब ये होता है। और अगर पोस्ट ऑफिस से जाएगा, आप कहीं गांव देहात में है तो सस्ता पड़ जाएगा पोस्ट ऑफिस से। और टाउन से? टाउन में कोरियर के जरिए से पहुंच जाएगा, उसमें जल्दी पहुंच जाता है। कोरियर के जरिए पटाइए। जी, एक और कॉल आ रहा है, जरा मैं रिसीव कर लेता हूँ। अच्छा, कट गया। तो काय से भिजवाऊँ, कोरियर से? कोरियर से भेज देना, लेकिन तेल अच्छा। का रेट बताइएगा तब तो हम लगाएंगे, कैसे क्या क्या करेंगे कैसे। हाँ, 230 रुपए की फाइल पड़ेगी एक तेल होगा, उसके साथ में एक और कैप्सूल का पत्ता होगा। कैप्सूल कितना आएगा? 10 कैप्सूल। हाँ खाना पड़ेगा ना, क्या करना पड़ेगा? हाँ, वो ऑयल में डालना है। ऑयल में? हाँ ऑयल में डाल के हाँ, उसको मिक्स कर देना है, हिला देना है। और पूरा 10 कैप्सूल एक साथ? हाँ, और खाने के लिए कुछ नहीं ना? खाने के लिए भी होता है, मगर देखिए मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम खर्चे में काम हो जाए तो बेहतर है। हाँ, तो वही तो बाकी मैं कोर्स देता हूँ, हाँ। उसमें लेके 300 का भी हो जाता है, 500 का भी हो जाता है, 600 का भी हो जाता है, उससे आगे भी हो जाता है। तो एक कोर्स का कितना होगा? एक कोर्स का हाँ, हो जाएगा 700-800 रुपए भी हो जाएगा, 1200-1500 रुपए भी हो जाता है। जितना सामान होता है उतने उसके हिसाब से होता है। मगर जो आप बता रहे हैं उसमें अगर हल्का फुल्का मंगाएंगे तो कोर्स मंगा लीजिए, 600-700 रुपए का हो जाएगा। 600-700 रुपए ना? जी। तेल आएगा, क्या क्या आएगा फिर उससे? तेल आएगा और उसमें कैप्सूल वगैरह आएंगे। हाँ 1 महीना का कोर्स ना? हाँ, 1 महीने का हल्का कोर्स। हाँ ठीक है, मंगाने के लिए मैं आधार कार्ड दे देता हूँ आपको। ठीक है नंबर सही, सही होगा ना? ठीक है। जी हजरत, जी हजरत। हाँ फरमाइए। जी, मैं वो कह रहा था हजरत जी कि जैसे वो कुछ वहाबी वगैरह की मैंने सुनी थी। हाँ वो करते जैसे हम मजार पे जाके जो वसीला लगाते हैं, हाँ डायरेक्ट भी मांगने की बात नहीं कर रहा हूँ, वसीले की बात कर रहा हूँ। हाँ। तो वो कहते हैं कि वो मक्का के काफिर ऐसे ही वो वसीला लगाया करते थे बुतों से।
تو یہ کہاں تک مطلب صحیح، اس کی تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا دیں گے؟ مولوی اسماعیل دہلوی کی کتاب ہے صراط جی مستقیم، جی اس جی کتاب سے حوالہ ہے کہ اللہ کے جو یہ ولی ہے نا، جی، یہ وسیلہ ہے ہمارا. اچھا ان کی کتاب میں ہے؟ ہاں ہاں ہاں، ان کی کتاب میں ہے. سارا میں انہی کے گھر سے حوالہ دیتا ہوں جو بھی دیتا ہوں. اچھا جی جی دیکھیے میں اپنے گھر کی کوئی بات بتاؤں گا تو تھوڑی مانے گا کوئی، جی جی جی، بالکل بالکل، بات ہے تو نا. صحیح ہے، مخالف سے مخالف کا ہی حوالہ دیا جائے تو مانے گا. مانے گا ہاں، لیکن مانتے کہاں ہی ہے، یہ تو اس کو بھی انکار کر سکتے ہیں حضرت یہ میں دیکھا میں جی. نے اور قرآن کا بھی حوالہ دیا ہے اس میں کہ قرآن میں آیا ہے، جی اسی کے ترجمے کو بتاتے ہوئے انہوں نے کہا ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. جی سمجھے؟ جی تقوی پرہیزی اختیار کرو، جی ہے نا. تقوی جی پرہیزگاری اختیار کرو جی اور اللہ کی راہ میں وسیلہ ڈھونڈو. وسیلہ ڈھونڈو، ہاں. ہاں تو حضرت یہ وسیلہ ڈھونڈنے کو تو میں نے مطلب ان کی سنا ہے، یہ کہتے ہیں بس وسیلہ کسی نیک اعمال کا لے سکتے ہیں یا تو پھر اللہ کے ہاں، جی تو ان سے زیادہ بحث نہ کر کے جی جی پھر ان کے باپ دادا کا حوالہ دے کے پھر ان کے منہ پہ تماچا مارو کھینچ کے. جی جی سمجھے؟ جی 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 جی، بالکل بالکل، ہاں وہی جی جی جی. نہیں میں تو سمجھتا ہوں حضرت بس کسی کو سمجھانے وغیرہ کے لیے اگر کوئی بات ایسی ہوتی ہے تو اسی لیے میں تھوڑا سا اس کے بارے میں، اور حضرت میں تھوڑا سا مطالعہ بھی اور بھی کروں گا اس جی. کے بارے میں. کتاب وغیرہ میرے پاس تو ابھی ہے نہیں کوئی خاص. تاریخ ابن کثیر ہے، جی اس میں بھی حوالہ دیا گیا ہے کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت خالد بن ولید کا عقیدہ، مجھے جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کے وسیلے سے فتح ملی تھی. جی جی ہاں ہاں، بے شک، یہ حضور تو کے میں وسیلے سے فتح ملتی تھی. جی جی ہاں بے شک، انہوں نے ٹوپی میں حضور سیل کے رکھے تھے. جی ٹوپی میں سیل. حضور کا جو بال ہے جی اس کے وسیلے سے فتح ملتی تھی. فتح ملتی تھی. جی جی اور یہ خالد بن ولید وہ ہیں کہ جن کی خواہش، جن کی جو ہے یہ چاہت رہتی تھی کہ جی میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں، جی بے شک، ہاں بالکل. مگر الحمدللہ بستر پر موت آئی، جی وہ سیف بستر پر اللہ. انتقال جی جی کیا. جی جی حضرت میں نے ان کی پوری ایک 3-4 گھنٹے کی ڈاکومنٹری میں نے پوری سن رکھی ہے ان کی حضرت. جی قرآن کا ایک اور حوالہ دیتا ہوں میں آپ کو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم. سمجھے؟ جی جی وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. جی اور جب ان کے پاس اللہ کی وہ کتاب قرآن آئی جو ان کے ساتھ والی کتاب توریت کی تصدیق فرماتی ہے، تصدیق فرماتے ہیں. جی جی اس سے پہلے وہ اس نبی کے وسیلے سے کافروں پر فتح مانگتے تھے، فتح مانگتے تھے. ہاں یہ میں نے سنی ہے. جی ہے حضرت. نا. جی 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 ہاں ہاں بے اور شک. جب تشریف لائے ان کے پاس تو پھر گئے، پھر گئے. ہاں بے شک بے شک بے شک. پھر ماننے سے ہی انکار کر گئے، جی جی ہاں جی ہے نا. جی حضرت. ہاں ہاں جی. اور حضرت ایک میں نے وہ اور ایک. ابھی میں اور جی بتاتا ہوں ان کے باپ داداؤں کی کتاب نکال جی کے. جی غیر مقلد صوفی کا تصرف، غیر مقلد شخص صوفی کیا نام ہے اس کا، عبداللہ وہابی سے بیٹا مانگنے پہنچا. جی سمجھے؟ غیر جی مقلد ایک جی غیر، یہی وہابی وہاں بھی. ایک ہاں ہاں وہابی سے بیٹا مانگنے پہنچا. جی سمجھے؟ جی جی حضرت. ہاں ان کی رگیں تو میں دباتا ہوں صحیح کر کے. ہاں ہاں بتائیے. وہ خود بیٹا مانگنے پہنچا. ہاں جی. اور حضرت میں نے یہ بھی سن رکھا ہے ہاں وہ کسی آڈیو میں کہ جیسے جو یہودی ہوتے تھے ہاں وہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی جنگ میں لے کے جاتے تھے، وہ تبرک کے ہاں طور ہاں پر، تو ہاں ان کو فتح ملتی تھی. ہاں. تو دیکھیے حضرت یہ صراط تو. مستقیم کا ایک حوالہ میں آپ کو بتا دوں. جی کہتے ہیں کہ اس کا بیان اس طرح پر ہے کہ بے شک مرشد اللہ تعالی کے راستے کا وسیلہ ہے.
जी मुर्शिद पीर। हाँ पीर, जी बेशक मुर्शिद अल्लाह ताला के रास्ते का वसीला है। वसीला है। जी अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला जी वजाहिदू फी सबीलिल्लाहि, फी सबीलिही है ना, लअल्लकुम तुफ्लिहून, यानी ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, समझे, जी और उसकी तरफ पहुंचने वसीला के तलाश लिए करो। वसीला ढूंढो, जी जी समझे। जी बिल्कुल हजरत। तो हजरत ये ऐसे मतलब ये क्यों इनके घर का इसलिए हवाला दे रहा हूँ ताकि जी, जी। इनके मुंह पे जोरदार तमाचा मारा जाए। हाँ अब वो कहते हैं वो पहले के जो बुत का वसीला लगाते थे, अरे भाई तो वो तो उनकी इबादत करते थे, वसीला किधर लगाते थे वो तो। वहाबियों देवबंदियों की लिखी हुई किताब सुनन दारमी, जी इसमें ये हवाला देते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर का वसीला, जी समझे, उनका वसीला, हाँ कब्र अनवर का वसीला, कब्र अनवर का वसीला। जी। जी बताइए। और तर्जुमा इनको अहले खबर हदीस नहीं। वहाबी। जी इनको खबर नहीं और सब पे वो फतवे लगाते चलते हैं। हाँ जी बताइए हजरत। नहीं हजरत काफी अच्छा लगा बात ये सुन सब के वहाबियों का आपसे। ही हवाला दे रहा हूँ मैं। जी जी हाँ हाँ बिल्कुल उन्हीं घर से। तो देवबंदियों से बात होती है तो देवबंदियों के घर का हवाला देता हूँ। किताब आ गई रोजा रसूल की ज़ियारत, ये भी वहाबियों की है। अच्छा अच्छा वसीले के मुनकिर वहाबियों का बड़ा मौलवी इब्न तैमिया कहता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब जिन्नो इंस के वसीला हैं। किसके? सुभान अल्लाह, जिन्नो इंस के। हाँ सब जिन्नो इंस के वसीला हैं हुजूर। सुभान अल्लाह। वसीले का सबूत वहाबी के घर से, जी किसी देवबंदी के घर से नहीं दे रहा हूँ, किसी बरेलवी के घर से नहीं दे रहा हूँ, वहाबड़ों के घर से दे रहा हूँ। बताइए हजरत। और ये पढ़ते लिखते कुछ है नहीं, बस सुन के कहीं से आ गए और बस ये शिरक ये शुरू हो गया सर। वही नहीं काफी। बहरहाल वसीले का सबूत बहुत हैं, बहुत हैं, बहुत हैं। सही अच्छा। बुखारी से भी है, मगर ये ना तो बुखारी मानते हैं, ना कुरान मानते हैं, ना जी। मानते हैं, ये कुछ भी नहीं मानते। हजरत मुझे कुछ आप किताबें वगैरह बता दीजिए कि मुताला करने के लिए कौन सी किताबें मतलब है जो मैं ले लूं हजरत। अच्छा जी अकीदे के ताल्लुक से, बस अकीदे के ताल्लुक से कुछ किताबों का नाम बता दीजिए कि तो मैं भी मुताला करूं उसका थोड़ा। अच्छा जी हजरत। अकीदे के ताल्लुक से, अच्छा एक जाल हक ले लीजिए आप। अच्छा जाल हक जी किसकी है हजरत ये मुसन्निफ? अहमद यार खान नईमी साहब की है शायद। अच्छा अच्छा हमारे यार खान ने मेरे। अच्छा जाल हक। हम्म। जी हैरत जी। अच्छा और ये फतावा रजीविया भी हैरत वो मैं सोचा पढ़ने को, अभी तक तो पढ़ा नहीं, जो मैं सोच रहा था पढ़ने को, वो भी अच्छी किताब है ना हैरत? हाँ अच्छा अच्छा मगर ये एक दो किताबें नहीं है, इस किताब को समझने के लिए बहुत बड़ा इल्म चाहिए। बहुत बड़ा इल्म। हाँ हाँ बिल्कुल बेशक सुन रखा जी, सुन रखा था मैंने। अच्छा जाल हक तो हैरत समझ में आ जाएगा हमें? आ जाएगी। अच्छा ठीक है ठीक है। थोड़ा मैं मुताला करता हूँ, मैं भी थोड़ा इसमें मतलब थोड़ा इंटरेस्टेड रहता हूँ और आप लोगों की बातें सुनता रहता हूँ, थोड़ा मुताला वगैरह, जी और काफी अच्छा लगता है। तो मैं जाल हक कहा ना आपने? जाल हक। अच्छा हजरत ठीक। तो ये ऑनलाइन मिल जाएगी या कि बुक डिपो में मैं ले लूँ? कुतुब खानों में मिलेंगे, कुतुब खानों में। अच्छा कुतुब खानों में। जी हजरत। देखो कुरान से अब मैं एक वसीला दिखाता हूँ आपको। जी जी मुनाफिक लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला नहीं मानते। जी कौन? मुनाफिक लोग। जी देख लो कुरान, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ा क़ील लहुम तआलू यस्तग़फिर लकुम रसूलुल्लाहि लव्वौ रूसहुम व एक मिनट जी वरअयतहुम यसुद्दूना वहुम मुस्तकबिरून। सूरह मुनाफिकून आयत नंबर 5। जी और जब उनसे कहा जाता, किनसे? मुनाफिकों से। मुनाफिकों से। और जब उनसे कहा जाता है कि आओ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे लिए मग़फ़िरत तलब फरमाएं, जी तो ये मुनाफिक गुस्ताख, समझे, जी ये मुनाफिक गुस्ताखी से अपने सर झटक कर पैर लेते हैं। कहते हैं ना जी आए है ना, ऐसे जो करते हैं। जी जब कोई अगर किसी को कुछ कह रिया हाँ तो वो एक अंदाज होता है। जी हाँ 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 तो यही शैतान हमारे नबी के सामने ऐसा
मतलब करते थे कुरान की आयत सुन सुन के, जी जी हाँ, तो हाँ, बिल्कुल। झटक कर फेर लेते हैं और आप उन्हें देखते हैं कि वो तकब्बुर करते हुए जी, आपकी खिदमत में आने से गुरेज करते हैं, गुरेज करते यानी हुजूर के पास नहीं आते। हैं। जी जी हाँ बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह मोमिन ही अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार रिसालत का वसीला अल्लाह पाक की बारगाह में पेश करते हैं। जी जी हाँ बिल्कुल, मोमिन बिल्कुल। ईमान वाले। जी हजरत, अभी मैं वो कल या परसों एक शेख जलालुद्दीन साहब की ऑडियो सुन रहा था, हाँ तो एक वहाबी से ही उनकी बात हुई, तो वो देखिए कितने बड़े घामड़ है। अब वो ये मानने को तैयार नहीं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे मालिक हैं। वो ऑडियो पड़ी हुई है अभी भी। वो शेख जलालुद्दीन साहब, तैमिया भी इस बात का कायल है। जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार अक़दस की जियारत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला बनाना जायज है। अच्छा, इब्न तैमिया की किताब में है। हाँ अच्छा, और मैंने सुना है वो ताबीज वगैरह भी लिखा करता था, एक मतलब हाँ ऑडियो में हाँ सुन हाँ रहा हाँ है। किताब का ताबीज नाम है इस्तहबाब ज़ियारत खैरुल अनाम, सफ़ा नंबर 534। जी 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 हाँ हजरत, मिला जुला के बात यही है, मैं इस ऑडियो में बहुत सारी सुना, यही है कि इनको अपने घर की खबर नहीं है। हाँ और बस ये धोखे में होते। मैं बार बार कहता हूँ कि वहाबी देवबंदी शैतान, ये इनमें 85% लोग धोखे में है। धोखे में है, बिल्कुल हजरत, बिल्कुल धोखे में है। मैं तो बार बार कहता हूँ। और हजरत सबसे ज्यादा इनको भटकाया जाता है शिर्क के मौजू पर, कि वो ये शिर्क हो जाएगा, वो शिर्क हो जाएगा। इसी वजह से कम इल्मी की वजह से हजरत ये भटक भी जाते हैं। हाँ सबसे तो ज्यादा। ठीक है फिर हजरत है। जी हजरत जी, ओके ओके, फिर आपकी कोई मसला हो तो आपसे बात करूंगा मैं। ठीक है ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी क्या नाम है भैया आपका? ललित भाई। जी ललित भाई बताएं, कुछ दिनों पहले हमने आपको ऑयल दिया था, आपके बालों की कंडीशन पहले से कैसी है अब? पहले से तो बेहतर लग रही है, क्योंकि थोड़े थोड़े बाल मुझे लग रहे हैं कि उगते हुए नजर आ रहे हैं, रुए ज़्यादा दिख रहे हैं। रुएं ज़्यादा दिख रहा है ना? पहले आपका ये सर ऐसा ही था जैसे ये पीछे है, ये है ना? पहले बिल्कुल खाली था। खाली था ना? जी, अब हाँ। जो है थोड़ा सा ये लग रहा है, रुए आ रहे हैं, हाथों में भी लगते हैं। हाथों में भी लगते हैं? जी, ये कितने दिन में इतना रिजल्ट आया आपका? ये बिल्कुल लो कंडीशन पे आया ये? जी बिल्कुल लो कंडीशन पे है, और हफ्ते भर के बीच में हफ्ते से 10 दिन के बीच का है ये मामला। अच्छा जो मेरा जो है इतने बार आए हैं, हुआ है। अच्छा, पहले जो है आपका बेदमा रुआं दिखाई दे रहा था? जी जी बिल्कुल चिकना, मतलब बाल है ही नहीं, मतलब बिल्कुल चिकना, मतलब सर था हमारा। अब जो है बालों में भी जो रुआं आया है, इसमें भी दम आ रहा है? जी जी जी, ऐसा लग रहा है जैसे कि इसमें से ही बाल जी अभी उगेंगे, और जी। जितना उसको मालिश किया जाएगा उतना वो निकला जाएगा। आप हजरात इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें, घंटी बेल आइकन को दबा दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।